Every art has an architect behind it, and if Yashasvi Jaishwal is an art, here is the architect, Mr. Jwala Singh Ji, under whose guidance the Southpaw has grown into status and is now becoming one of the topmost cricketers in India. And this person, Mr. Jwala Singh Ji, has been in every journey of his, from giving him a shelter to making him one of the best players in the contemporary time right now. So today we are here with Jwala Singh Ji. Jwala Ji, thank you very much for your time with us. This is Shauradi from One India, Michael. So yeah, thank you very much. So how are you? Let's start with I'm that good. only. Thank you for being with me, and thank you for giving me this platform. Pleasure to be here. Thank you very much, sir. So we shall start with the main thing, Yashasvi Jaiswal. You have been his coach, his mentor, his guide, probably his parent as well at a point of time. So the way he's playing now, first test in Australia, after getting out in the first innings for a duck, getting 100 and a big 100 as well. How do you see him performing in the rest of the BGT series and beyond? Well, I think I'm not surprised because I know his character. Um, since I took him in 2013, initially there was a lot of time where we spent making him a strong person, like with the mental aspect, technically, and so many things we did. And then later on, the way he started playing for different teams, and the way his character is that earlier he takes time, and then he score runs. That is how Yashashvi is. So yes, I'm very happy because a lot of people were questioning about his ability. Like he's not. I mean, he has scored runs in India. He has scored in West Indies, but the real test will be in Australia, England, South Africa, and some other countries. So I feel like he has proven that he's not just to play in India and scoring runs in home conditions. He can score everywhere. So I'm very happy for him. One thing that you said recently that he has gone there to score 200s, and we have seen as well that as well. Whenever he scores 100, either he scores a double 100, he has two double hundreds, and the others are like 170 and 160. So how did it instill? Because we see many players after they score 100, they sometimes get impatient and lose their wicket. But in case of Yashasvi, out of 400 that he has scored, everything is all of them are more than 150 runs. So how did it develop? How did you instill this, or was it an innate talent of his? Well, first of all, if you are a batter, you need to be hungry for the runs. I remember once, like, I took him to Wasim Jaffer when he came to me. The first interaction with Wasim Jaffer is my good friend also. So I showed his file to Wasim Bhai, and when Wasim was going through, he said one thing to Yashashvi that now if you have the habit of scoring bigs, don't break it because it's a habit, like making runs is always a habit. So I think he has developed that habit to convert his performances into the big ones. And I always say like that अच्छा खेलने वाले ना बहुत होते हैं, लंबा खेलने वाले बहुत कम होते हैं. तो मुझे लगता है the way he has been developed, the way we used to give him practice, because you are here at the Oval Maidan on the same pitch. I always used to organize long sessions for him, like he used to bat for 40, 50 overs. I didn't care how many times he gets out. So you'll see that Divyansh is also Yes, going to yes, do that. he's just I'm carrying going it. to make him 30 overs batting. I'll see how many runs. So it's all about having the right process and the right mental stage, and also the counseling. So if three things are together, if your skills are good, your mental state is good, and if you're hungry for the run, definitely you can do that. And that is clearly visible in Yashashvi's performance. And again, like whenever I give coach any player, I always tell them to make small milestones, and then just incline. I mean, just align that and make it bigger. Like if somebody is scoring 50, I always tell the players, like if you can score 50 runs, why not 100? So break 50s into 200 into 250s, break 200 into 200. So that is how the mental preparation was. That I think that's all working well, and that's why he's doing good. सर अगर बात करते हैं बिकॉज यू हैव बीन हिज मेंटर एंड हिज पेरेंट एज वेल, जब वो बिहार यूपी से आया था, जब आपके पास, जब आपने उसको एक जगह दिया रहने का, यू बीन हिज कोच एंड यू
you built him like your own son. तो देखिए बहुत सारा टैलेंट आता है, बहुत सारे आपके नज़रों में बहुत सारा टैलेंट्स ऐसे आता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपको कौन-सा मोमेंट में लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग ही है इसमें बात? बेसिकली जैसे मेरी जर्नी है, मैं हमेशा अपनी जर्नी के बारे में बात करता हूँ। मैं जब 12.5 साल का था तो मैं मुंबई आया, गोरखपुर से आया, और उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। ये भी नहीं पता था कि कहाँ पे कोचिंग होता है। एंड आई वॉज पैशनेट टू मीट आचरेकर सर, एंड आई वॉज पैशनेट टू फॉलो द फूड स्टेप ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड विनोद काम्बली दैट टाइम in 90s. You remember that Yes. time was that era. So that's how I came to Mumbai, and then I tried very hard to play for India. I gone through many criticism, and I cannot tell you that how pain I gone through. I stayed in dairy shops, even I slept on the grounds. I did not had money to have food. That was me. I was a fast bowler, and I used to bowl 5-6 hours in the nets, and then the diet was like vada pav, samosa pav, bhajia pav, like I was not able to afford those money. Say most of the times I used to go to my friend's house to have just meal without knowing them that I'm here because I want to have food. So that was me. And if you want to become a player, you need the proper food, proper shelter, and so many things, good coaching, everything. It's, as I always said, the success is combination of so many things, and so the failures. So that's how when I was playing cricket, I tried everything with my heart, soul. I put all my energy, blood, whatever I had, but then I could not achieve. So I was searching for a guy who's just like me. So when I left playing cricket, because as I said, I got through many criticism. Even my family used to criticize. One day my father said like, पैसा तो बहुत बना लेते हैं लेकिन नाम नहीं बना सकते, and so many things like that. Once upon a time, like there was a match, India Pakistan match was going on, और मुझे अभी भी याद है कि सचिन ने एक अपर कट पे छक्का मारा, and my father was little frustrated. We both were sitting together watching that game, and because he wanted me to see there, and he said कि सांप बहुत होते हैं लेकिन मणिधर सांप बहुत कम होता है, and that comment was on me. So I got very angry. I did not reacted, but those things were always going in my mind when I left playing cricket. Finally my father expired in 2009. Before dying, he was saying the same thing, that naam banana, like that. So that was always going in my brain, that if I could not do it, how can I do that? So when I met Yashasvi in 2013, because I was searching these kind of talents, I found that similar kind of desire, similar kind of situation, and that guy was also fighting to survival in Mumbai to play cricket. And when I was talking with him, I met him in 17 December 2013. When I met him, when I heard his story, when I saw him in the nets, I asked him to come to my place. And when I started talking to him, everything was similar, very, very similar. I mean, then I realized that I think there is some hint coming from the God, that शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर कोई भी चीज़ आप दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसको आपको देने के लिए लग जाती है। तो जिस तरीके से मेरा डिज़ायर था, क्योंकि मैं जी रहा था लेकिन मैं मर रहा था, व्हेन आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट, में जी रहा था लेकिन मैं मर रहा था, बिकॉज वो हमेशा से मेरे को ना, वो जो लोगों ने ताने दिए और जिस तरीके से मेरी फेलियर स्टोरी लोग फेमस कर रहे थे, जिस तरीके से लोग मुझे टॉन्ट मारते थे, आई एम टेल यू कि आई वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन। मैं लोगों से मिलता नहीं था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग व्हेन आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन माय फादर डाइड, आई ट्राइड हार्ड, आई वेंट टू सो मेनी प्लेसेस टू प्ले, और फाइनली बाद में मुझे पता चला कि विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट कोच, विदाउट सिस्टम सपोर्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट डजंट मैटर हाउ गुड यू आर एंड आप कितना मेहनत करते हो। तो जब यशस्वी मुझे मिला ना, तो वही सेम डिज़ायर, सिमिलर स्टोरी, सिमिलर बैकग्राउंड। ही केम फ्रॉम यूपी, आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम यूपी। वो भी अपने वाज नॉट लिविंग विद हिज पेरेंट्स, आई डिड द सेम। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये कहीं ना कहीं किस्मत कनेक्शन है, और वहीं से मुझे लगा कि लेट्स वर्क हार्ड। एंड मैंने उसको बोला भी था कि 10 साल हम ना बिना सोचे मेहनत करेंगे, और जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड आई पुट ऑल माई हार्ट एंड सोल, एंड दैट गाय ऑलवेज प्रूव मी राइट। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसको कभी टास्क दिया उसने किया नहीं है। तो आई एम प्राउड ऑफ हिम दैट ही डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। और अगर मैं स्किल वाइज बोलूँ, इफ आई टॉक अबाउट his quality, I think he has a tremendous temperament, that he, as I said earlier, like Wasim Bhai said, you should not leave habit of scoring big runs.
So he had that neck, and then rest we just work hard together, and he's there. किस्मत कनेक्शन तो जरूर है सर, बिकॉज ऑफ योर टू ऑफ योर किस्मत कनेक्शन इंडिया हैज गॉट अ जेम. तो सर बात अगर बताते हैं कि वी हैव सीन स्टोरीज लाइक ही यूज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स बिफोर एंड यू हैव said that those things under when he came under your shelter, that was not, you gave him a proper life, not just cricket, you took care of his food and his shelter, everything. So अभी ऐसा जब बात होता है, मीडिया में बात होता है या फिर कुछ लोग बताते हैं, how do you feel this are these things justified from your point of view? What kind of talks? You know that he used to sell pani puri, he used to sleep on grounds where the water would have been there and you would have been sleeping on bricks and all. Basically, Yashashvi came to Mumbai maybe in 2010-11. I'm not sure because I was not willing to know his background. क्योंकि अगर आप किसी गरीब बच्चे को उसका बैकग्राउंड पूछोगे ना तो दैट रियली हर्ट द इमोशंस. सो आई नेवर आस्क्ड दैट व्हाट यूज्ड टू डू बिफोर. I just heard his problems, that I don't have stay, I don't have food, I doesn't have my parents here. That's it. I never asked what you were doing or so many things. So when he was without me in Mumbai, he had that struggle. He was living in Azad Maidan, and during those time, because there were a lot of issues, because nobody was allowing him to play because some of his document issue. Some people made his the false document, made him to play a tournament, and then they always used to come and say, if you play this tournament, we will go and complain and so many things. So he was like mentally down, and he was not even playing well because of those issues. So that's time, because he was not playing and living in that area, he done that struggle. He lived in Azad Maidan, and if you can see this tent, it's like that. So he was living with these kind of people, but that is just for few years, like before meeting me, like 1 or 2 years, whatever, or 1.5 years. But that is also not easy, a kid who is just small boy, living in the tent and fighting for survival is not easy. But yes, coming on your point, I think since he came in my life or I came in his life, we never ever thought that he is the son of somebody else. और हमने ना उसको मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा तो वर्ड नहीं है, मैंने कभी उसको दूसरा इंसान नहीं समझा. बच्चा तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, या स्टोरी, आई मीन स्टूडेंट जो होगा बहुत ही छोटा वर्ड हो जाएगा कि स्टूडेंट या किड. ही वॉज माई सॉल ऑलवेज, कि ये लड़के को कैसे भी करके मुझे वहाँ पहुँचाना है जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता था. और जो भी मेरे पास था, वॉट एवर आई हैड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर, टाइम, एनर्जी, वॉट एवर आई हैड, आई गिवन टू. मुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे क्रेडिट लेना है, बट येस दैट इज ट्रूथ, कि मैंने कभी सोचा नहीं कि वो किसी और का बच्चा है या आगे जाके क्या करेगा. आई नेवर थॉट दैट. आई हैड ओनली वन मिशन, कि इस लड़के को वहाँ पहुँचाना है जहाँ पे मैं पहुँच नहीं सका. एंड नॉट ओनली इंडिया, बट माई गोल वॉज बिगर देन दैट, कि बिकॉज मैं सचिन तेंदुलकर को देख के मुंबई आया था, तो आई यूज टू राइट सचिन तेंदुलकर स्कोर व्हेन आई वाज इन मुंबई. तो मैंने एक डायरी बनाया था और सचिन तेंदुलकर के हर इनिंग्स का परफॉर्मेंस लिखता था, कि उसने कितने रन बनाए, कैसे आउट हुआ, कौन सा मैच है, तो मैं मेंटेन करता था. तो कहीं ना कहीं विजुअल्स मेरे दिमाग में थे कि अगर मैं किसी लड़के को ट्रेन करूंगा तो उसका भी कुछ सचिन जैसा ही रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ उस तरह का कारनामा करना चाहिए. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू दैट, एंड ही इज ऑन द वे. आपकी बात से आता है सचिन तेंदुलकर, probably Saurav Ganguly, Rahul Dravid, there are many greats of Indian cricket. हाल ही में जो है विराट कोहली. So is Yashasvi Jaiswal is the next big thing of Indian cricket? आई थिंक टैलेंट वाइज यस, एबिलिटी है उसके अंदर, और जिस तरीके से वो तब के आया है, मतलब उसको इजीली कुछ मिला नहीं है. जैसे मैंने बताया कि मेरे मिलने से पहले उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, और मेरे मिलने के बाद भी मैंने उसको कोई चीज़ इजी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज़ जब हमको आसानी से मिलता है ना, तो देन यू विल नॉट गो अहेड. इफ़ यू गेट समथिंग very easily, you will not go ahead, you may just be present there, that's it. So मैंने उसको कभी भी easily नहीं दिया, a part of giving all facilities. उसको कुछ भी चाहिए था तो I used to always put a tag, कि अगर तुझे ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा.
और कभी भी मैंने कभी बहुत इन्फ्लुएंस नहीं किया किसी को कि इसको सिलेक्ट करो। मैं हमेशा बोलता था कि रन बना, कोई 100 बनाता है तो तुझे 200 बनाना है। और मेरा हमेशा से एक रूल है कि मैं हर एक प्लेयर को बोलता हूँ कि इफ़ यू स्कोर 50 पीपल विल से वेल प्लेड, इफ स्कोर 100 पीपल विल से या ही इज़ अ वेरी गुड, बट इफ यू स्कोर 200 रन पीपल विल से नहीं, ये लड़का ना नेक्स्ट लेवल को डिजर्व करता है। तो मैंने उसको कभी भी कोई चीज़ इजीली नहीं दी है, एंड दैट्स वाई उसका आप कैरेक्टर देखोगे तो हर जगह पे जाके वो ही इनिशियली ही टुक हिज टाइम एंड देन ही परफॉर्म। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो तब के आया है, एबिलिटी है, बट अब कैसा है कि फोकस की ज़रूरत है। Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Saurav Ganguly, Rahul Dravid, they're the great players. They had everything as Yashasvi is having. But the way they handle themselves for the longer time, that Yashasvi needs to do. There are a lot of people who comes कि यार ये सचिन बनेगा या गावस्कर बनेगा, बट एंड ऑफ द डे सचिन और गावस्कर ने वो 20 साल या 22 साल की जर्नी की है, एंड दैट्स व्हाट दे इंडेड एट द हाई नोट। सिमिलरली मुझे लगता है अगर यशस्वी कर सकता है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। आपके साथ उसका बात होता है अभी? फिलहाल थोड़ा कम होता है बिकॉज ही इज वेरी बिजी, आई एम ऑल्सो वेरी बिजी। वेन एवर ही डजंट डू वेल आई डेफिनेटली मैसेज हिम एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेल। अच्छा, एक बात है कि रुकना नहीं है, अगर आपके हिसाब से हम देखते हैं रुकना नहीं है। सो आफ्टर यू हैड अ ड्रीम टू बिकम अ क्रिकेटर, बट यू सॉ योरसेल्फ इन यशस्वी एंड नाउ यू हैव हेल्प्ड हिम टू रीच दैट डेस्टिनेशन। तो अगर अभी जो टैलेंट्स है उस पे भी उसका भी to make him prosper again, do you feel the same energy again right of course मेरा एनर्जी बहुत बढ़ गया है। see because I must say that I thanks to the universe, thanks to the God, I do a lot of meditation। मुझे लगता है कि विजुअल में ना बहुत ताकत होती है। इफ़ यू कैन विजुअलाइज एनीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट इट एंड देन यू कैन डिलीवर इट। सो पहले मैं सोचता था ठीक है, यशस्वी को मैंने एक बार बोला भी था कि तू जब इंडिया खेल जाएगा ना तो मुझे हेवन मिल जाएगा। अभी मुझे लगता है नहीं यार, वो इनफ नहीं है, और भी चाहिए। मुझे लगता है कि बिकॉज मैं ना बहुत छोटी जगह से आया हूँ। गोरखपुर में गांव है मंझगावा करके, अगर वहाँ पे कोई किसी को बोलता है, जब व्हेन आई वाज किड या मैं जब मुंबई आ गया था कि मैं मुंबई में इन प्लेयर्स के साथ मिला हूँ, इनको देखा हूँ, तो पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मतलब बहुत छोटी जगह है। तो मुझे ना बाद में रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि विदाउट यूनिवर्स यू कैंट अचीव एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं इस एज में यहाँ से विदाउट रिसोर्स, क्योंकि तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, तो शायद यूनिवर्स इज गिविंग मी दीज थिंग्स टू आई कैन बिल्ड समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इस स्टेज से जहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ, थैंक्स टू द गॉड, थैंक्स टू द पीपल, थैंक्स टू द लॉट ऑफ पीपल, मुझे लगता है यहाँ से मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। एंड आई एम श्योर आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स, ऑल माई एनर्जी कि मैं और इंडिया प्लेयर बनाऊं, बट डिपेंड करता है कि उनके अंदर यशस्वी वाला टैलेंट है कि नहीं। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग हार्ड टू अचीव मोर फीट्स, और मुझे लगता है दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, क्योंकि जिस एज में मैं अभी हूँ, आई एम जस्ट इन 40s, तो मुझे लगता है मैं और 20 साल है, एंड माई गोल इज़ टू क्रिएट मोर इंटरनेशनल प्लेयर। वो इंडिया से भी हो सकते हैं, इंग्लैंड से भी हो सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है आई हैव गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट विद यशस्वी, बट देयर इज अ लॉट, जैसे सचिन और सौरव का आपने एग्जांपल दिया, मैंने भी दिया, कि अगर यही चीज़ और मैं 20 साल तक करूँगा तो आई थिंक आई कैन क्रिएट मोर प्लेयर्स फॉर द कंट्री। देखिए, आप गुरु माने जाते हैं सभी बच्चों के लिए, जो भी आपका स्टूडेंट्स आते हैं फॉर द ट्रेनिंग्स एंड ऑल। आपका एक शिष्य यशस्वी जायसवाल, अगर और एक साइड पे देखते हैं, और आपका और एक शिष्य जिसके साथ आप 4 साल आई थिंक काम किया, पृथ्वी शॉ, 3 years, पृथ्वी शॉ। The way things started for him, India under-19 captain, winning the World Cup, Test match debut for India, century. The kind of batter he is, the talent he has. Yeah, what has gone wrong with him? मेरा स्टूडेंट है तो मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि जब आप किसी को भी टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, सिखाते हो, तो आप उसका हमेशा अच्छा ही चाहते हो। और दुनिया में 3 ऐसे रिलेशन हैं, माँ बाप और गुरु, जो हमेशा किसी के लिए वेल विशर ही हो सकते हैं, इवन वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, क्योंकि उनके वजह से उनको खुशी मिलती है, उनको इज्जत मिलती है। तो मुझे लगता है पृथ्वी वॉज अ वेरी ब्राइट टैलेंट, स्टिल इज़ अ ब्राइट टैलेंट, और पीपल वे आर टॉकिंग वेरी हाई अबाउट हिम। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया यशस्वी के लिए
और जैसे सचिन का हमने बात किया कि दे आर द लेजेंड्स ऑफ द गेम, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टार्ट होना एक अच्छे सीड की तरह, एक अच्छे बीज की तरह है। उसको कितना बड़ा पेड़ बनाना है, एक बीज को कितना बड़ा पेड़ बनाना है ना, उसमें राइट, बोलते हैं ना, राइट मेथड चाहिए, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपने एक पौधे को बड़ा पेड़ बनाना चाहते हो, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको धूप में रखना पड़ेगा। दैट इज हाउ अ प्लेयर इज। अगर आपने अच्छा स्टार्ट किया है तो इट मीन्स यू हैव अ गुड एबिलिटी, बट देन उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन कितने हो, आप अपने काम के साथ लॉयल कितने हो, आप अंदर से कितना ऑनेस्ट फील करते हो, देन आप मेहनत कितना करते हो, हाउ मच यू वर्क हार्ड, हाउ मच यू वर्क हार्ड। देन मेरे को ऐसा लगता है कि अपने स्किल को कैसे आप और डेवलप करते हो। तो मुझे लगता है ना कहीं ना पृथ्वी वो करने में विफल रहा। ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। मे बी देयर विल बी मेनी रीजन, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले उसको देखा था और आज तक मैंने देखा ही नहीं। दिस इज मी 2017 इन, और आज 25 2024, आने वाले हैं। और बहुत बार मैंने उसको मैसेज भी किया, बट ही नेवर कम्स टू मी। तो मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू मेक एनी कंट्रोवर्शियल थिंग। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके साथ भी कर रहा है, दैट इज़ फाइन। बट मुझे लगता है कि सबसे पहला जो अपने को प्रायोरिटी अपने गेम को देना चाहिए, अपने ब्रेड एंड बटर को देना चाहिए। अगर वो देगा तो अभी भी आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका स्किल जो है, वो स्किल जो उसका अंडर 19 या इनिशियल ईयर था ना, अभी भी वही है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एम वेरी वेरी ब्लंट। उसने अपने स्किल को डेवलप नहीं किया, क्योंकि आप देखो अभी भी शॉर्ट बॉल पे वो इज़ नॉट कंफर्टेबल, अभी भी थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है टेक्निकली, आई एम टेलिंग यू। तो अगर बाकी प्लेयर्स को देखो, उसी के साथ शुभमन गिल थे, अभिषेक शर्मा थे, यशस्वी उसके बाद का प्लेयर है, तिलक वर्मा उसके बाद का प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वर्क एथिक स्टार्ट टूवर्ड्स द गेम मे बी बेटर देन हिम, एंड उसका नहीं था। तो अगर वो अभी भी करे, क्योंकि अभी भी 25 ईयर्स का है, अभी भी करे, तो आई फील ही कैन डेफिनेटली मेक कम बैक। वेरी सरप्राइज कि उसको आईपीएल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इस साल, बिकॉज आफ्टर बेस प्राइस भी कम किया था। बहुत डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन जिस तरीके से, बिकॉज उसका ब्रांडिंग जो है ऐसा चल रहा है कि लोग वो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आईपीएल तो खैर वो खेलना चाहिए था, बिकॉज इंडिया प्लेयर है, और ऐसा भी नहीं कि वो स्लो खेलता है। बट इट टोटली फ्रेंचाइजी के ऊपर है, हाउ दे थिंक अबाउट हिम। मे बी दिस इज वन ऑफ द लेसन कि वो इस साल नहीं सोल्ड हुआ, इस साल अगर अच्छा करता है, इफ ही डज वेल दिस ईयर, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर पीपल कैन बाय हिम। अभी एक बात करते हैं मुंबई क्रिकेट का, बिकॉज यू हैव सीन मुंबई क्रिकेट एज अ प्लेयर योरसेल्फ, एज अ कोच भी आप देख रहे हैं कितना बदला है। फॉर इफ यू से अबाउट द लास्ट 1 or 2 decades, the way the kind of cricketers Mumbai used to produce, who would have played with straight bat, would have been a lot more defensive. You can speak like Sunil Gavaskar sir and all these things. And now we're seeing a complete flamboyant style. Surya Kumar Yadav का बात करते हैं, यशस्वी का बात करते हैं. How things have changed and what is the reason behind it? See, if you talk about the cricket, I think it has changed all over India, even all over the world. Uh, if you see being IPL coming in, people started playing different shots, like, Surya Kumar Yadav used to play different shots, that paddle. So many, even a lot of people are hitting switch hit, outside the off stump. So I think because of IPL, many things have changed. If you talk about the Mumbai cricket, I think if you see the Mumbai cricketers, they are more of building their innings, because we play days matches. In Mumbai, if you play school cricket, you get 3-day matches. If you play junior cricket, you play 3 days matches. And the atmosphere of cricket is very, very hard and competitive here. If you go to the Azad Maidan, you play 10-12 games together. So I think because of those situations and those, the competitive cricket, I think Mumbai cricket is very, very different. And if somebody comes from here, a lot of people talks, if you're playing, it's hard to play for Mumbai than playing for India. So I think the competition, what, especially in batting, Mumbai is having, is definitely very, very higher than others. And I think we must thanks to the Mumbai Cricket Association, like they are always organizing multiple tournaments for all the people. So I think that's why the Mumbai cricket is very, very different. The final 2 questions. I know the trial is going on. आपका मुंबई क्रिकेट क्लब का, आपका ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में अगर बताइए. We can see, if you can, I will just pan the camera. You can see a lot of youngsters जो आए हैं. They are doing a trial under ज्वाला सिंह जी's guidance.
तो इसके बारे में अगर थोड़ा बताते हैं, हाउ द थिंग्स आर गोइंग, व्हाट आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स दैट यू आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमी और बाहर के भी मुंबई में? Well, we have at the moment we have two branches, and we just started the third one. We have around 250 300 students, and all our top players are playing for state teams, like Mumbai under 19, 23, so many, like. So my agenda is very very simple, that you give maximum games to the players. The more they will play, the more they will improve, and I always work on the mental part. अभी आप देख सकते हो कि मेरे साथ दिव्यांश था, इज वेरी टैलेंटेड बॉय, हैज प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप. तो अभी मैं उसको 30 आवर्स नॉन स्टॉप बैटिंग कराने वाला हूँ अगेन द स्पिनर ऑन स्पिनिंग ट्रैक. सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज. इफ आई फाइंड अ गुड टैलेंट, आई रियली वांट देम टू ग्रो. तो मुझे लगता है कि एज एन अकेडमी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू make player aware about the game, and they should improve, and they should get to the next level. So that we are trying. We have around 30 to 40 coaches, around 50 to 60 people working for us, multiple locations, multiple systems, and with us Chaminda Vas is with us, Rangana Herat with us, Wasim Bhai is my good friend, he is with us, and Vinayak Samant. So many players comes to help us. We organize coaches seminar also, we are doing in January, where we are training the coaches, and my next coaching plan is MCC at your doorstep. So we are going with one concept, that we are going to train so many coaches, and we'll send them to kids house to coach them. Those are little ones, because जो बड़े जो बड़े जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, because they doesn't have time to bring them at the ground. So there are so many things happening. I'm thankful to the God that I'm able to do that. Yeah, this is the final one, and I think this is very important. आपने जब बात कोचेस के लिए बताए, तो या ऑफ कोर्स आई वाज गोइंग टू आस्क यू एज वेल. सभी क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, कोचेस के बारे में बात होता है जब बंदा अच्छे खेलता है, मगर उसके बाद प्रॉब्ली जस्ट स्टूप्स अ बिट डाउन. आप यू हैव बिकम सक्सेसफुल, यू आर स्टिल डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब. ऐसे भी बहुत सारे कोचेस कोना कोना में हिंदुस्तान के, दे आर बिल्डिंग द नेक्स्ट जनरेशन, जो दिन का पूरा देते हैं अपने शिष्य के ऊपर. दे वर्क वेरी हार्ड. What will be your message to them, and what have you realized as a coach that you are? बहुत ही फ्रैंक बात करूंगा. जब मैं क्रिकेट कोचिंग में आया था, तो मुझे लगता था कि जब मैं कोई इंडिया प्लेयर बना दूंगा, बिकॉज कोचिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है. मुझे ऐसा लगता है कि एक कोच है ना, बहुत सेक्रीफाइस करता है, मे बी मोर देन देयर पेरेंट्स, अगर सच में वो अच्छा कोच है. क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी डॉटर 6:50 को स्कूल जाती है, और मैं हार्डली उसको देखता हूँ स्कूल जाते हुए, हार्डली. समटाइम्स इफ आई एम लेजी इन द नाइट, थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा 7 सवा 7 तक घर पे रह गया, देन आई सी हर. और मुझे याद नहीं कि मैं उसको लेने कब गया हूँ, क्योंकि ये बच्चे का ना राइट है कि उसके फादर मदर उसको मॉर्निंग में बाय बोले. तो अगर ऑफिस गोइंग लोग हैं, दे सी, बट वी डजंट सी, बिकॉज हमको 7 बजे ग्राउंड पहुंचना होता है, एंड वी आवर लाइफ स्टार्ट एट 5 o'clock. और फिर जब हम शाम को आते हैं तो 7-7:30 हो जाता है. तो कोचेज अपने फैमिलीज के साथ बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग दैट टाइम टू समबडी एल्स किड, किसी और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. तो ये एक पहली चीज़ है कि कोचेज का सेक्रीफाइस बहुत बड़ा होता है. और दूसरा, उनको इतने रिवॉर्ड्स नहीं है. अगर आप देखोगे तो कोचेस के लिए कोई रिवॉर्ड्स नहीं है. अगर आप IPL में देख लो, प्लेयर्स को बड़े बड़े रिवॉर्ड्स है, बट कोचेस के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है. अगर कोई एक प्लेयर बना देता है तो उसको क्या है. तो व्हेन आई वाज कमिंग इनटू द गेम, तो मुझे ऐसा लगता था चलो ठीक है, अभी मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि ना ग्राउंड मिलता है आपको कहीं पे, गवर्नमेंट से तो कोई ग्राउंड आपको फ्री में मिलता नहीं है, ठीक है, ना आपको कोई इक्विपमेंट्स कोई फ्री में देता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है. उल्टा कोचेस को लोग, और मे बी अगर मैं बोलूँ तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, क्योंकि कोच ऐसा कोई जो फेलियर होता है वही कोच बनता है. कोई अगर गेम से रिटायर्ड होता है, या मे बी बहुत, या तो कोई बहुत हाई कोच बनते हैं जो इंडिया खेल लेते हैं, फर्स्ट क्लास खेल लेते हैं, वो BCCI के सिस्टम में आ जाते हैं. लेकिन जो बंदे लाइक क्लब क्रिकेट से रिटायर होकर खेलते हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है. मे बी वो कहीं जॉब करते हैं, उसके पैसे भी कोचिंग में लगाते थे. तो मेरा भी यही है कि व्हेन आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कुछ बिजनेस चालू किया, कुछ काम चालू किया, तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला, क्रिकेट से रिलेटेड था. फिर उसके पैसों से मैं फ्री कोचिंग करता था एट द बिगिनिंग. तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कोई इंडिया प्लेयर बना दूंगा तो मुझे लोग बुलाएंगे,
मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा या कभी गवर्नमेंट बोलेगी आई एम गिविंग यू द लैंड, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। एंड आई होप ये हो, बिकॉज आई वांट। तो फिर क्या होता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर, अगेन यू चार्ज टू द स्टूडेंट्स कि भाई अभी हमको बड़ा करना है, तो देन दैट इज ओनली वन वे। तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादातर पुअर बच्चे बहुत आते हैं, हाई यू नो लाइक प्रिविलेज किड्स कम आते हैं, पुअर बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिफिकल्ट होता है, दोनों को बैलेंस करना हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एंड अगेन बहुत सारे बच्चे बिकॉज हमारे पास भी अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं किसी कोच के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अर्ली ऑफ देयर एजेस, और जैसे वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर वो किसी और कोच के पास चले जाते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी, मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है मैं हमेशा से उनको बोलता हूँ कि अगर आप मेरे पास आ गए आई एम फाइन, बट ऑलवेज talk about your past coach as well, because give them the credit, because they really work hard and you are with me because of their hard work and your hard work. So these things are very very normal, that they doesn't get recognition, they doesn't get any rewards. Even corona के time पे I remember कि coaches के लिए किसी association ने कुछ नहीं किया, ना umpires के लिए किया, ना coaches के लिए किया, उनको कुछ भी नहीं दिया। तो it's very hard कि BCCI इतना बड़ा organization है और इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, एंड पीपल हु आर रियली वर्किंग ऑन द ग्राउंड पुटिंग देयर हार्ट एंड सोयल। मैं बताऊँ, कोचिंग सबसे डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि ये धूप में ना 8-8 घंटे खड़े रहने से ना हमारे स्किन काले पड़ जाते, जल जाते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि कोचेस को रिकॉग्नाइजेशन दो। एंड अगेन वन मोर थिंग, आई हैव स्टार्टेड अ इनिशिएटिव माई कोच माई हीरो, क्योंकि भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है, आई एम वेल सेटल्ड। सो मैंने अभी एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, माई कोच माई हीरो, जिसमें मैं मुंबई के अराउंड 20 से 25 या 30 कोचेज जितना मैं कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू गिव देम द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 2-3 years, वट एवर माई बजट विल बी, और आई एम गोइंग टू आस्क सम ऑफ द क्रिकेटर्स ऑल ओवर इंडिया एंड इवन सम फॉरेन प्लेयर्स टू कम एंड प्ले अ गेम फॉर कोचेस। सो मेरा फेब और मार्च में होने वाला है माई कोच माई हीरो, उसको आप सपोर्ट करिए, और वी विल जनरेट फंड्स विद दोज इवेंट्स, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू द कोचेस दोज आर रियली स्ट्रगलिंग। Well, thank you very much, Balaji, for your time. Yeah, you have been making stars. You have started extremely well in terms of your coaching career, and as the years go ahead, we believe that you are going to reach higher skies. Thank you very much, sir. Thank you. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.